friends, let's now discuss about the heating effect of electric current. Till now, we have studied about electric current, its generation, how to find it. Then we saw the resistance which opposes the current. Then we can manipulate the current using resistor. Then we saw the types of resistor. Then we took Wheatstone bridge, a device used to measure the value of resistance. Then we studied potentiometer, using which we can measure the aim of the cell. And after completing these all things, let's switch over to heating effect of electric current. Heating effect of electric current means when electric current is passed through a wire, a conductor, heat is produced. This is a quite common experience for us. In our daily life, we have seen we have lots of examples regarding this. When current is passed through an electrical heater, means you can say a water heater, electrical water heater. When current is passed, heat is produced. We have electric stove. We have electric iron also working on the same principle. When electric current is passed, heat is produced. Now we heat. How much is the heat produced? That's what we are going to study here. Okay. So this is a part of heating effect of electric current. Effects of electric current में सबसे पहला heating effect of electric current. In that, what is happening here in heating effect? Electric energy of the charge converts into heat energy. यानी कितना electric energy utilize हुआ या फिर कितना heat energy produce हुआ. That's what we are going to obtain. Okay. Now for that, let us suppose there is a conductor, that's or a resistor having resistance R. इसके दो एंड पॉइंट्स रहते हैं A and B. करंट इज सप्लाइड बाय बैटरी. ये करंट यहां से यूं आ रहा है और इस तरफ जा रहा है I. So current moves from A to B. Means charges are flowing from A to B. Now suppose the charge Q is passing, then at point A its energy will be Q into potential at point A, and at point B it will be Q into potential at point B. Now what can you say about the potential at A and potential at B? दोनों का रिलेशन क्या होगा? Equal to, greater than or less than. See, current is moving from A to B. Current is flowing from A to B. तो current always flows from high potential to lower potential. यानी कि VA is bigger than VB. Potential at A is more than potential at B. As current is flowing from high, current always flows from high potential to lower potential. यहाँ पे A to B जा रहा है, इसलिए A is at a high potential, B is at a lower potential. यानी VA की value is bigger than VB. Potential at point A is more than that at B. Therefore, energy of charge particle at point A is more than that at B. Therefore, Q into VA will be bigger than Q into VB. यानी A point पे charge की energy ज्यादा होगी, B point पे will be less. मतलब क्या हुआ? A से B गुजरते वक्त energy of the charge has reduced. Energy of charge has reduced. क्यों reduce हुआ? कहाँ गया वो energy? चलो क्यों reduce हुआ? तो potential कम है, पर कहाँ गया वो energy? Reduce हुआ तो क्यों reduce हुआ? Why did this reduce? Or where did that energy go? So we remember that while passing through a resistor, electrons or the charge carriers or the electrons are colliding with the oscillating ions. याद होगा how resistance arises, उसके बारे में बात किया था. So they are colliding with the oscillating ions. Now during the collision with the ions, the electric charge or the charge carrier यानी कि electron transfer some of its energy to oscillating ion. अपनी कुछ energy during the collision transfer करेगा. अब energy transfer करेगा तो खुद की energy reduce होगी. सामने किसको मिली? Oscillating ion को. तो उसके oscillations बढ़ जाएंगे. Oscillation of the ions will increase. Oscillation बढ़ेंगे मतलब उसका temperature बढ़ गया, क्योंकि oscillation की energy depends on the temperature. So as the oscillation of ions have increased, the temperature of that part has increased. मतलब क्या हुआ? Resistor में temperature बढ़ेगा, and that means heat energy has been produced. That heat is dissipated out. And ये heat energy कहाँ से आई? At the cost of electric energy of the charge. कितनी electric energy? Q into VA minus Q into VB. Q common निकालो, VA minus VB. And ये VA minus VB क्या है? Potential difference across A and B. Potential difference across A and B. तो ये हो गया regarding how much electric energy is lost और how much heat energy is produced. क्योंकि जो भी electric energy lost हो heat के form में produce हो, convert होता है and it is flowing out. Means whenever current passes through a resistor, always heat is generated, and that heat is given as कितनी heat generate हुई? That is equal to the electric energy utilized. कितनी utilize हुई? Q into V. Thus in general what we say is that W को क्या बोलेंगे? We'll call it as either
इलेक्ट्रिक एनर्जी यूटिलाइज्ड or we can say it as heat energy produced. Heat energy utilized और heat energy produced. क्या है इसका फॉर्मूला? तो अगर चार्ज Q पास हो रहा है तो Q into V. You get V is the potential difference. Also by Ohm's law we have V equal to IR. बराबर है? या फिर चलो एक काम करने पहले we know that I is equal to Q by T. So Q is equal to I into T. तो ये हो जाएगा V into I into T. एक और फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस into current into time for which we are taking the heat energy. Further we have V equal to IR. Using that we can say that या इसकी जगह IR रखें तो I square RT. एक और फॉर्मूला हो गया. अच्छा V की जगह IR रखा उसके बाद लेट्स डू I की जगह V by R रख देते हैं. I equal to V upon R. तो ये फॉर्मूला जाएगा V square by R into T. ये हो गया डिफरेंट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी यूटिलाइज्ड और हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड. इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज और हीट एनर्जी प्रोड्यूस. जब एक ही क्वांटिटी के मोर देन वन फार्मूला हो गए तो व्हाट टू डू? वी हैव टू अंडरस्टैंड इन व्हिच सिचुएशन शुड वी यूज अ फार्मूला. कौन सा फार्मूला कब यूज करने को समझते हैं. तो व्हेन यू आर गिवन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस गो फॉर दिस. बैटरी दिया, करंट दिया, टाइम दिया तो यूज करें. अगर करंट दिया, रेजिस्टेंस दिया तो ये, पोटेंशियल डिफरेंस दिया, रेजिस्टेंस दिया तो ये यूज करें. ओके सो दीज आर द फार्मूला टू बी यूज्ड इन डिफरेंट केसेस. ये हो गया कितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ. वी नो दैट एनर्जी अपॉन टाइम गिव्स द पावर. तो पावर कितना यूटिलाइज हो उसकी बात करें. पावर तो पावर के लिए क्या लिखेंगे? एनर्जी यूटिलाइज पर यूनिट टाइम W by T. तो पावर P will be equal to W by T. That will be Q into V by T. यहाँ पे T निकल जाएगा, V into I हो गया इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला. I square R as well as V square by R. ओके एंड पावर का यूनिट ये तो सारे जूल में आएंगे. ये सारी बातें जूल में हो गई एनर्जी. इसलिए ये हो जाएगा वाट में. ओके पावर दिस मच वाट. नाउ इलेक्ट्रिकल पावर यूटिलाइज्ड या फिर हीट पावर, हीट प्रोड्यूस्ड, हीट एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम. ये पावर हो गया गिवन बाय दिस फॉर्मूला. हाँ टिपिकली ये फॉर्मूला कब यूज करें? व्हेन यू हैव अ सीरीज कनेक्शन ऑफ कंडक्टर्स. सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है इसलिए कांस्टेंट हो जाएगा. P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा. इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस P इज प्रोपोर्शनल टू R. एंड जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पावर जनरेट और डिसिपेट होगा. जितना रेजिस्टेंस कम उतना पावर कम डिसिपेट होगा. दूसरी बात पैरेलल कनेक्शन हो तो गो फॉर दिस फॉर्मूला. क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम. इसलिए उस केस में पैरेलल कनेक्शन के केस में इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आएगा. जितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम उतना पावर डिसिपेशन ज्यादा. जितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा उतना पावर डिसिपेशन कम. ये लॉजिक भी क्वाइट क्लियर है क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए पावर कम डिसिपेट होगा. करंट कम हो जाएगा, पावर ज्यादा, सॉरी पावर कम डिसिपेट होगा. क्लियर अबाउट दिस. तो ये हो गया रिगार्डिंग द फार्मूला फॉर पावर एंड रेजिस्टेंस. ओके हमारे लिए दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है. अच्छा जनरली बोला कि हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. जब कभी बोला जाए कि पावर डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी पूछा हो कोई भी कंडक्टर में, कोई भी वायर लाइन में, तो उसके अंदर मोस्ट कॉमन फॉर्मूला यू टू टेक इज I square R. क्योंकि पावर इज डिसिपेटेड ड्यू टू हीट. एंड हीट किस फॉर्म में क्यों करंट प्रोड्यूस होगी? क्योंकि करंट पास हो रहा है. करंट पास होगा तो चार्जेस विल फॉर्म द कोलिजन एंड देयरफॉर due to collision their energy will be utilized and that will convert into heat energy and will be dissipated out. तो मेन फॉर्मूला I square R है. लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन में क्या होता है? लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन में जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा. बराबर है. तो पावर ज्यादा डिसिपेट होगा. पावर डिसिपेट होगा तो एनर्जी लॉस हो रही है, उसको बोलते हैं हीट लॉस या ओमिक लॉस. अब ये लॉस हो रहा है एनर्जी, तो उसको रिड्यूस करना हो तो करंट को रिड्यूस करके करंट स्क्वायर के फॉर्म में. करंट कहां से आएगा? ये पावर डिसिपेटेड की बात है ना, व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग द पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. अब आई कहां से आएगा? तो आई पावर जनरेटेड इन द पावर हाउस V इज गिवन एज V इनटू I. आई को कम करना है तो V बढ़ा देना पड़ेगा. V बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा, इससे पावर भी कम हो जाएगा. पावर कम होगा डिसिपेशन, आई करंट कम होगा तो पावर डिसिपेशन कम हो जाएगा. मतलब क्या हुआ कि यू इंक्रीज द पोटेंशियल वोल्टेज एट द जनरेशन पॉइंट, यानी कि पावर हाउस में वोल्टेज बढ़ा दो तो करंट रिड्यूस होगा एट द सेम पावर. उतने ही पावर वाला पोटेंशियल आएगा. करंट रिड्यूस होगा तो लाइन में ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन पावर लॉस विल बी लेस.
ये दोनों पावर में डिफरेंस है, ये क्या है जो पावर भेजना है वो, एंड ये पावर जो लाइन में डिसिपेट होने वाला है वो। तो टू रिड्यूस द डिसिपेशन यानी कि लॉस, पावर लॉस, करंट को कम करना पड़ेगा, करंट को कम करने के लिए वोल्टेज बढ़ा देते हैं। इसलिए नॉर्मली द वायर लाइन विच इज पासिंग केबल्स पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करते हैं जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो पोटेंशियल बढ़ा देते हैं, हाई वोल्टेज पे भेजा जाता है। इसलिए नीचे वो खंभों में नीचे बोर्ड लगा होता है डेंजर हाई वोल्टेज लाइन, वो इसीलिए लगा होता है क्योंकि हाई वोल्टेज लाइन है तो ये करंट कम कर सकते हैं मेंटेनिंग द पावर। अब करंट कम होगा तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए द पावर ट्रांसमिटेड इन द मेन्स लाइन इज नॉर्मली एट हाई वोल्टेज। अब तुम बोलोगे हाई वोल्टेज वाला पावर अगर घर पे पहुंचा तो घर का क्या होगा? अगर हम टच करते हैं तकलीफ वाला है, इट्स डेंजरस, तो घर पे जब वो हाई वोल्टेज वाला पावर आएगा तो क्या होगा? तो अगेन एट आवर होम, जस्ट रीचिंग बिफोर आवर होम, द वोल्टेज हैज टू बी रिड्यूस्ड। वोल्टेज रिड्यूस करेंगे तो करंट बढ़ेगा एंड सेम पावर बी अवेलेबल एट द होम। ओके, तो वोल्टेज रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? अगेन एट पावर हाउस वी नीड टू इंक्रीज द वोल्टेज, एट home we need to reduce the voltage. So for that a device called transformer is used. A device called transformer is used. And ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा? वोल्टेज को बढ़ाएगा कम करेगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। यानी ट्रांसफार्मर पावर हाउस में भी लगा होता है, ट्रांसफार्मर हमारे घर के बाहर भी लगा होता है। तुम बोलोगे हमारे घर के बाहर कहाँ पे है? तो आउटसाइड योर हाउस और बिटवीन 4 or 5 हाउस यू फाइंड एट दिस टाइप ऑफ शेप बॉक्स इज केप्ट। टॉरेंट पावर का नॉर्मल ये बॉक्स होता है एंड ये बॉक्स बेसिकली ट्रांसफॉर्मर है। इसके ऊपर लिखा होगा डेंजर, वो ट्रांसफॉर्मर है। ओके, सो नियर बिटवीन 4 or 5 हाउसेस या फिर फ्लैट में नीचे कॉमन दिस टाइप ऑफ बॉक्स विल बी देयर, यूं ऐसा लगा होगा एंड इसके ऊपर सीमेंट का वो प्लेटफॉर्म बना देते हैं ताकि हिले नहीं बॉक्स। ट्रांसफॉर्मर की ज्यादा डिटेल्स विल बी डीलिंग इन चैप्टर नंबर 7। वेल स्टडीइंग चैप्टर नंबर 7 विल टेक द ट्रांसफॉर्मर इन फुल डिटेल्स, पर फिलहाल इसका यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज इन ऑर्डर टू रिड्यूस द power loss during the transmission. Okay, इसके बाद एक और टॉपिक है लाइटनिंग के बारे में, वो तो थियोरेटिकल टॉपिक है, यू कैन जस्ट गो थ्रू एंड इन द नोट्स। दैट्स ऑल इन चैप्टर नंबर 3।